Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you doing? Hope you are doing well and you and your family enjoying good health and you are also taking your online classes regularly. Well, if you have any sort of problem in your classes, you can contact with your relevant teacher in relevant campuses on Microsoft Teams. It's very convenient or very simple or easy interactive way in which we will try our best to solve your queries and problems regarding your syllabus. It's lecture number 6, and in the previous lecture, lecture number 5, we started parts of speech. I told you it's a very important one. Although its weightage is of 5 marks, it has great significance in your syllabus, and if you want to improve your language, it's very important for you. Don't forget it. And if you are especially if you are the student of medical and engineering and you're going to appear in your entry test, so it's very important for you because it's a part of entry test as well. Lecture number 6, let's begin. Your teacher, Professor H.M. Sikandar. I've been teaching you intermediate part 2 as your beginner. Inshallah, I'll try my best to make the things as simple as ABC as your beginner. Let's have a recap of your previous lecture. Parts of speech. I defined the parts of speech in a very simple way and hope you understood or you have learned the definition by heart or understood the definition as well. So I repeat the definition again. Words are divided into different kinds and classes in a sentence called parts of speech according to their role in a sentence. Rules. I tried my best to highlight their rules in different colors. For example, this color represents a rule. Ali is a noun, is verb in gray shape. A article, definite, indefinite, we'll talk about it later. Good, adjective. Why, noun, common noun. इसी तरह सब के जो नाउन्स हैं, सारे नाम है, ये सारे मैंने हाईलाइट किए पिछले लेक्चर में. तो पिछला लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है. Once again, my brief introduction in front of you. So in the previous lecture we also talked about the first type of parts of speech, noun and its kinds. I defined noun as the naming word. It's a very simplest definition in which you can define noun or anything. Naming word, noun gives a name to anything. Or in other words, you can memorize the definition. Name of any person, place, thing or an idea is called noun. For example, Allama Iqbal, name of a person. Pakistan, place, book, thing, or beauty. Beauty is an idea. And we have also kinds, discuss the types. You may say the topics. I represent 9 topics in the previous lectures, which are in front of you. Let's have a recap. Common nouns, just like boy, country, city, college. Proper noun, Ali, Pakistan, Lahore, Apex College. Or collective noun, army, represent a group, people, jury, class. Abstract noun, bravery, honesty, beauty, etc. Countable noun and uncountable. These are very important nouns. These are materials, and I divided into different categories, countable and uncountable, because we are going to solve the correction according to these 2 rules. Just we can count apples, we can count books, we can count pen. Oil, we cannot. Rice, milk, gold, we cannot count them. They are uncountable. Gender, male, either the noun is a male, masculine, feminine, neuter, or all these types we will discuss. Just like lion, heroine, baby, neuter gender, baby boy, baby girl. Whenever you have a good news, you first ask is baby boy or baby girl. Room is also neutral. Then number 8 is number. Number is also singular, plural. Man, women, wife, wives. How to make plurals we will talk about. And cases is also very important. We have 2-3 correction rules from the cases, just like nominative, or you may say in other words is a subject, or accusative, objective, or genitive, possessive, in which
you talk about a possession. So let's talk about the rule number one. It's a very very important rule. Today we will just discuss first two rules, and there are almost five rules. In this lecture, I'll talk about rule number one and two. So try to understand carefully. It's very simple one. Noun correction rules. Rule number one: don't add s, es, ves, or ies in the end of the following non-countable nouns to make them plurals. Just like information, we cannot say informations. Vacation, we cannot say vacations. Golds, we cannot. Stationaries, we cannot say. Advices, it's wrong to say. Walks is wrong to say. Poetries is also wrong to hear. कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, अभी हम इस पर ब्रीफली बात करें. अब मैं उर्दू में और आसान अल्फाज में, कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे होंगे कि कब उर्दू शुरू हो, उनके लिए तो रूल नंबर वन ये समझना बहुत ज़रूरी है. इस लेक्चर में सिर्फ दो रूल्स डिस्कस किए जाएंगे. जैसे कि पहला रूल है बेटा, डोंट ऐड एस ई एस. मसलन एस आप देखें किसी चीज़ के साथ ऐड करके, मसलन पेन है तो पेन्स आप एस ऐड करके उसका प्लूरल जमा बना देते हैं. और जैसे ई एस लगा दें आप किसी चीज़ के साथ तो अब्यूज़ कर दें आप इसको ई एस लगाने के बाद, या राइसिस को कर लें गोल्ड्स, या इस तरह आप ई एस लगाएं, गोल्ड्स में एस लगता है. और वी ई एस जैसे वाइफ का प्लूरल बनता है वाइव्स, नाइफ का नाइव्स, हाव्स, इस तरह जमा बनता है. आई एस जैसे जिसके सामने वाई आ जाए, जैसे वो आपके सामने स्टेशनरी है तो उसे आप स्टेशनरीज नहीं कह सकते. जिस तरह आम कॉमन हम प्लूरल बनाते हैं, इनको यूज़ करके आप इन वर्ड्स के साथ इनका प्लूरल नहीं बना सकते. तो वो कौन से वर्ड्स हैं आपके सामने है ब्लैक में, ये देखें. इसका सादा ट्रांसलेशन मैंने कर दिया कि आप इनको ऐड नहीं करेंगे इन अल्फाज के बाद इनकी जमा बनाने के लिए. इन दैट फॉलोइंग नॉन काउंटेबल नाउन्स टू मेक दैम प्लूरल्स. प्लूरल जमा, जैसे इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेशंस नहीं कह सकते. मसलन उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी, ये उर्दू में तो चलो आप कह सकते हैं, लेकिन ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशंस, ये गलत है. ठीक है, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन. वकेशन, ये छुट्टियों की तातीलात के लिए आम कॉलेजेस अक्सर गलत लिखते हैं. वकेशन VACA, VO वाला वो और है, वो पेशा बन जाता है, और इसको वकेशंस नहीं कहना चाहिए. इसका एस ऐड करके आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते. इसी तरह गोल्ड्स को गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कह सकते आप. स्टेशनरी ही इटसेल्फ प्लूरल है, इसको आप इसके साथ इसको स्टेशनरीज नहीं कह सकते. एडवाइस उर्दू में बनता है नसीहतें, और इंग्लिश में जो है इसको आप एडवाइसेस नहीं कह सकते. अच्छा, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, और क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, क्लास में तो टीचर्स को आप जो है वापस जो नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे आप जिसको समझ नहीं आई, जहाँ पे आप थोड़ा सा बैक करके वापस देख के अपना आइडिया क्लियर कर सकते हैं. इसलिए मैं जल्दी में चल रहा हूँ. इस वाले टाइम में हमने बचाना है, और आप इसे बार बार देख सकते हैं. जितनी बार देखेंगे उतना समझ आएगा. वॉक की जमा वॉक्स नहीं होता, और होता भी है कहाँ कब होता है, इस पर हम बात करते हैं. पोइट्रीज नहीं होता, हेयर्स नहीं होता. अब देखिए ना, जैसे वर्क अगर तो किसी शायर के राइटर के वर्क्स की बात करें तो फिर ठीक है. मसलन इकबाल्स वर्क्स आर वेरी फेमस, तो ये जुमला ठीक है. और अगर आप कहें कि मुझे कुछ काम है, मसलन आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, तो ये गलत है. आप किसी शायर के कामों के काम की बात करें तो ठीक है, और अगर वैसे आम इंडिविजुअल यूज़ करें तो गलत होगा. इस तरह पोइट्रीज नहीं होता, पोएम्स कह सकते हैं आप. ये आइडिया समझने वाला है. हेयर, ये हमारे सर के बाल जो हैं बेटा, हम कहूँगा आई हैव ब्लैक हेयर. मैं हेयर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एज ए कलेक्टिव बात कर रहा हूँ. और अगर मैं अपने सर पे इस तरह हाथ फेरता हूँ, खुदा ना खास्ता मेरे हाथ में 2-3 बाल आ जाते हैं, तो फिर मैं कह सकता हूँ हेयर आर 2-3 हेयर्स ऑन माई पाम. ये ऑफिस कह सकते हैं आप. ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं. मसलन एक सोफे पर एक बिल्ली बैठी हुई है, उठी है, 2-4 बाल गिने हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह, तो उसे हम कह सकते हैं हेयर्स. मसलन 2 of my hairs are white, मैं ब्लैक कहने जा रहा था, अभी इतने नहीं है, वाइट, तो ये हेयर्स यहाँ ठीक है. ओवरऑल वैसे हम हेयर इज़ सिंगुलर इसके साथ हम यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे. फ्रूट को फ्रूट्स नहीं कह सकते. मसलन आम बहुत सारे लेके आए तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स लेके आया हूँ, तो ऐसा गलत है, लेकिन डिफरेंट काइंड्स हो तो फिर कह सकते हैं. ब्यूज़ को ब्यूज़ नहीं कह सकते. ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कह सकते. नॉलेजेस नहीं आपने सुना होगा. सैंड्स चले कुछ हद तक कहा जाता है, लेकिन राइस को राइसिस नहीं कहा जाता. मिसचीफ गलती को मिसचीव्स नहीं कह सकते. ट्रबल्स कहना गलत होता है.
आज ये अपनी सारी करेक्शन कर लें और ये आगे आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली है, और ख़ासकर एंट्री टेस्ट में भी। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहते बेटा, न्यूज़ को न्यूज़ीज़, इसका प्लूरल बनाना हो तो न्यूज़ ईजी होता है, न्यूज़ीज़ नहीं, आप आर नहीं कह सकती। बिजनेसिस, इसका भी ये भी प्लूरल आपने कभी नहीं सुना होगा। तो एटसेट्रा कुछ और वर्ड्स हैं, लेकिन आप फिलहाल इतने याद कर लें, इंटर लेवल पे तो काफ़ी है। हाउएवर, तहम, बहरहाल, दे कैन बी मेड काउंटेबल। इन नॉन काउंटेबल को हम काउंटेबल भी बना सकते हैं और प्लूरल या जमा कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन सच एज। ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे पहले अगर ऐड करें तो हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। मसलन अ पीस ऑफ अगर लगाएं तो मसलन वर्क आपने पढ़ा, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आपने एप्लीकेशन पढ़ी है, ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसी तरह पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। इसी तरह आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आप इस तरह कह सकते हैं। इसी तरह हेड ऑफ कैटल्स, या इसकी सेंस में यूज़ किया जा सकता है। बार ऑफ गोल्ड, इसके लिए स्लाइस, ये से ब्रेड के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन लॉफ्स इसके लिए बेहतर है। आर्टिकल्स स्टेशनरी, आई बॉट सम आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी फ्रॉम द बाजार यस्टरडे। इसी तरह आर्टिकल्स फर्नीचर के साथ भी आ सकता है। आई बॉट सम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर्स नहीं कह सकते आप। ग्रेन, राइस के लिए यूज़ करेंगे आप ग्रेन्स ऑफ सैंड या राइस, यानी इन वर्ड्स को आप पहले लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। अदरवाइज़ खुद से ये SES लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको अच्छे से रट्टा मारें, याद कर लें, ताकि आपको ये जब करेक्शन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। होप सो कि आपको ये रूल समझ आ गया है। चलें इसको मज़ीद इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखें, ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स ऑफ राइस, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, इसे मिसचीव्स नहीं कहेंगे, गलतियाँ नहीं कहेंगे, उर्दू में चला है, इंग्लिश में नहीं होता। आर्टिकल्स, आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी आर्टिकल्स, पीस ऑफ वर्क या एडवाइस और बिजनेस, बार्स ऑफ गोल्ड, अ स्ट्रोक ऑफ लक, अ फैक्ट ऑफ नॉलेज, पोइट्री, पोएम कह सकते हैं। लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड के लिए आप जमा इस तरह बनाएंगे, ब्रेड्स नहीं कहना चाहिए इंग्लिश में, ये गलत है। तो देखें जी, यहाँ पे ये टेबल है, आखिर में इस रूल को और इसे जानते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस मैंने ये सारे गलत लिखे हैं और करेक्ट सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तो देखिए, शी गेव मी 2 इंफॉर्मेशंस, आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। शी गेव मी 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट है, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक होगा, ए होगा तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे अ पीस ऑफ वर्क। इसी तरह आप इंफॉर्मेशन के सामने एस नहीं लगा, इधर लगा हुआ है, बस ये पहचानना आपने सेंटेंस में और इस पर टिक लगाना है, ये करेक्ट है। 4 सेंटेंसेस आएंगे, अभी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ उसकी। दूसरा सेंटेंस, ही गेव मी 2 एडवाइसेस, मैंने बोला अभी एडवाइसेस नहीं होता तो फिर कैसे होगा, ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। अच्छा, ये एक एस वाला होता है, वो वर्ब के तौर पर सा, जैसे ही एडवाइज्ड मी, तो ये नाउन के तौर पर सी वाला इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट ईयर में मैं बता चुका हूँ। अली टोल्ड मी 2 न्यूज़, ये भी कहना गलत है। अली टोल्ड मी 2 पीसेज ऑफ न्यूज़, ये कहना दुरुस्त है। देखें वो वर्ड, ये इनमें से कोई एक वर्ड, हर वर्ड का अपना अपना सिलेक्शन है, और इसको लगाने के बाद आप उसका प्लूरल बना सकते हैं, उसको साथ लेके चल सकते हैं। आई हैव 2 वर्क्स टू डू, 2 वर्क्स टू डू, ये कहना गलत है। मैंने कहा शायर के वर्क्स की बात करें तो जमा हो सकता है, लेकिन हम अपने काम के लिए इसे जमा नहीं कर सकते। और देखें, आई हैव 2 पीसेज ऑफ वर्क टू डू, मुझे 2-3 काम है। आई हैव अ बिजनेस इन ऑफिस, आई हैव अ बिजनेस, ठीक है। अब ये भी ठीक है वर्ड, ठीक है, बिजनेसेस कहना गलत है, ये भी सेंटेंस कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस इन ऑफिस, ये एक अच्छा फॉर्मल हाईली करेक्ट वर्ड है। आई बॉट 3 फर्नीचर्स, जैसे मैंने अभी बोला, आई बॉट 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। बड़ी उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ आ गया है और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। और आज के लिए सिर्फ 2 रूल्स डिस्कस करने हैं। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2, which is also as simple as ABC if you try to understand. It's all about you people. We cannot do anything if you aren't cooperative, if you aren't vigilant or serious. मैं अक्सर कहता हूँ, नालायक स्टूडेंट हो लेकिन सीरियस हो तो उसे पास करवाना बहुत आसान है। एक लायक स्टूडेंट है लेकिन नखरे करता है, नॉन सीरियस है, पढ़ता नहीं है, तो उसकी नाकामी उसका मुकद्दर है, और अगर किसी तरह वो पास हो भी जाए तो अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो इसलिए डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, और अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर के मार्क्स ही फर्स्ट ईयर के,
टाइम एंड अगेन आपको बताते रहेंगे ताकि आपको होश रहे, जगाते रहेंगे आपको। ओके, सम काउंटेबल, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, नाउन्स, जैसे कि शीप, हम भेड़ों को गिन सकते हैं, कैटल मवेशियों को गिन सकते हैं, डियर हिरन को गिन सकते हैं, फिश मछलियों को गिन सकते हैं, ट्राउट टाइप है उसकी स्पीशीज काइंड्स हैं, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, सिनरी, डजन, डजन भी बोलते हैं, 100, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। हैव सेम फॉर्म्स फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा जी, इनके साथ भी एस, ई एस इस तरह का लगाकर इनको जमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे। नीचे एग्जाम्पल देखिए, कैटल, मैंने बोला कैटल, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये प्लूरल लेते हैं, बाज़ों का सिंगुलर भी है लेकिन प्लूरल ज़्यादा आता है। जैसे कि कैटल इज़ ईटिंग ग्रास और कैटल्स, इसका एस लगा के प्लूरल बनाना गलत है, इससे बचिए। आर ईटिंग ग्रास, ये दोनों गलत हैं और ये करेक्ट है, कैटल आर, कैटल्स नहीं बोला और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, कैटल आर ईटिंग ग्रास। अली's सिस्टर केम विद ऑल हर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में सारे बाल बच्चे लेके आ गए। आजकल जैसे नानी माँ के यहाँ जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, सारा टब्बर सारे बाल बच्चे ले गए, तो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसकी, आपकी जो नस्ल है, बच्चे हैं उसको। अली's सिस्टर केम विद ऑल हर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बोलना आपने, ठीक है, ये इसके साथ एस लगाना गलत है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल, सीनरीज कहना गलत है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वंडरफुल, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। ओके जी, पायलट्स फ्लू इन 2 फ्लाइट्स ऑफ 3 एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स कहना गलत है, एयरक्राफ्ट ही होता है, एस लगाना गलत है। आई हुक्ड 5 फिशेस, आई हुक्ड 5 फिश। अच्छा, ये भी एक कंसेप्चुअल है कि अगर एक तरह की बहुत सारी मछलियाँ हैं, मसलन रोहू की है या ट्राउट सारी हैं, तो आप उसे फिशेस नहीं कह सकते, उसे आप फिश ही कहेंगे। लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ हों, जैसे कोई बहुत सारी डॉल्फिन्स हैं, शार्क्स हैं या छोटी मोटी मछली हैं, तो आप फिर दैन इसको प्लूरल कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड स्पीशीज़ को फिशेस कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर फिश ही होगा, 5 फिश, फिशेस नहीं, जिस तरह वो हेयर बालों की मैंने मिसाल दी। लो जी, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस तरह बेटा पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ये करेक्शन का पोर्शन है जो कि मैं समझता हूँ कि ये 5 नंबर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपसे कोई 5 ऑप्शंस पूछेगा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो नाउन की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। तो नंबर 1, 2 शीप्स आर ईटिंग ग्रास। अभी मैंने बोला शीप, कैटल, डियर, इनके साथ हम एस या एस नहीं लगाते, प्लूरल नहीं बनाते। तो देखें ए बी सी में से कौन सा करेक्ट है, तो आप कोशिश करें ज़रा, शाबाश। 2 शीप इज़ नहीं आएगा, प्लूरल हो सकता है, बी ए गलत है। 2 शीप आर ईटिंग ग्रास, हाँ ये करेक्ट है। 2 शीप हैव नहीं कर सकते क्योंकि ईटिंग नहीं आता, शीप्स आर नहीं आता, ऐसा लगे, तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन बी है ये, 2 शीप आर, 2 शीप्स नहीं कहना, ठीक है, और इज़ नहीं लगाना, आर प्लूरल, वर हो सकता है, वॉज नहीं आएगा, हैव आ सकता है। इसी तरह नंबर 2, he gave his son many advices, अभी हमने सॉल्व किया है, तो इसमें देखें कौन सा करेक्ट है। तो मैं गेस करूं तो he gave his son many pieces of advice, do you agree? हाँ जी, many pieces of advice, son, he gave his son many pieces of advices, ये गलत है, यही करेक्ट है आपका, ठीक है जी। बी, बीटा, her hairs are curly, अभी मैंने बोला अगर कलेक्टिव बात करें तो एस तो लगेगा नहीं और साथ में प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगा, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हर हेयर इज कर्ली, हर हेयर्स वर कर्ली, हर हेयर्स, जहाँ पे हेयर्स लगा है या प्लूरल फॉर्म है वो गलत है, तो ये ए अल्फा आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह दिस स्पेक्टिकल इज़ वेरी कॉस्टली, पहले तो बात स्पेक्टिकल, ये जो ग्लासेस चश्मा है इसे हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं और स्पेक्ट्स बोलते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में स्पेक्ट्स, लेकिन स्पेक्टिकल्स तो इसको हम प्लूरल बोलते हैं हमेशा। बस दिस स्पेक्टिकल इज गलत है, दिस स्पेक्टिकल ये भी गलत है, स्पेक्टिकल, दीज स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, तो ये प्लूरल बनाने के लिए ये वैसे अगला रूल था, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है ताकि ये आपको आइडिया हो। तो ये था जी, होप सो कि आपको रूल नंबर 1, 2 समझ आ गया है, बाकी 3 रूल्स हैं और इसके बाद नाउन, परफेक्ट और बहुत सारा नॉलेज आपके पास होगा जो एंटी टेस्ट और डेली लाइफ में आपको काम आएगा अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं।
तो पिछले लेसन में हमने इडियम 1 to 10 हमने डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपने उसे याद कर लिया होगा, और याद साथ साथ करेंगे तो आपका फ़ायदा है। तो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 11। अ ब्लैक शेप, ब्लैक शेप, काली भेड़, ऐसा आदमी, अ डिस्ग्रेसफुल पर्सनैलिटी या डिस्ग्रेस पर्सन, ऐसा शख्स जो बदकार हो, अपनी फैमिली में बुरा हो, यानी जिते बहुत सारे लामे होंगे रहने दिन हर टाइम। कोई ना कोई किसी, अगर लड़का है तो लड़कियों को छेड़ता पकड़ा गया है, लड़की है तो वो वैसे जो है वो घर में उल्टे सीधे जो है वो भी लामे दे रही है। तो ये ज़रा इससे बचना है। ऐसे लोग यहाँ बदकारी, चुगली, गीबत खाते हैं और नफ़रत फैलाते हैं, ऐसे बदकार लोग होते हैं या गलत काम। तो देखिए, हैरी इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान की काली भेड़ है, यानी वो दूर से पहचानी जाती है। अ रोलिंग स्टोन, ये अपने फर्स्ट ईयर में इसका जो पढ़ा था फ्रेजर प्रोवर्ब। रोलिंग स्टोन मीन कहते हैं बेटा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना गाड़ का, ये आगे वर्ड है। रोलिंग स्टोन कहते हैं नोमोस, यानी वेंडरिंग पर्सन, घूमता फिरता आदमी, ना इधर का ना उधर का, जिसे आप उर्दू में लोटा कहते हैं। वैसे जो वॉशरूम में रखते हैं लोटा, उसे ईवर बोलते हैं, ईवर। लेकिन जो सियासत में लोटे होते हैं वो ये वाला लोटा नहीं होता, उसे हम बोलते हैं टर्न कोट। सियासत वाले लोटे को कहते हैं टर्न कोट। तो रोलिंग स्टोन ही होते हैं वो भी, कभी इधर कभी उधर। जैसे पाकिस्तान, कभी यही लोग इमरान खान के साथ हैं जो तो कल नवाज शरीफ साहब के साथ थे और उससे पहले जरदारी साहब के साथ थे। तो इन्हें कह सकते हैं आप रोलिंग स्टोन्स हैं, या टर्न कोट। कोट होता है जो दोनों साइड पे आप पहन लेते हैं, उसे कहते हैं, वैसे लोटा कह लें आप सादा अल्फाज में। रोलिंग स्टोन कहते हैं स्नोमोस। नंबर 13 है कैट स्पा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। इंस्ट्रूमेंट या स्टूज, इंस्ट्रूमेंट कोई आला कार बन जाना। जब आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है, इस्तेमाल कर लेता है, तो आप एक कैट स्पा बन जाते हैं उसका। और स्टूज कहते हैं चमचा, जो कि हर ऑफिस में हर जगह आपको नज़र आएगा, जो बॉस का चमचा होता है और उसकी बातें मानता है। मसलन कैट स्पा वर्क्स ओनली फॉर हिज बॉस, वो किसी का काम नहीं करता, सिर्फ बॉस का काम करता है, उसको खुश करने के लिए। तो चमचा भी कह सकते हैं, अब इसे आलाकार भी समझ सकते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम आ चुका है। और जहमत की सूरत में रहमत, अगर बाज़ औक़ात ऐसा लगता है बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन वही आपके लिए अच्छे होते हैं। मसलन ये एयरक्राफ्ट गिरा अभी, बड़े अफसोस की बात है, ये PIA का, जिसमें बहुत सारे जहली पायलट निकले हैं, वो साबित हो गया कि क्यों गिरते हैं, अब आपके सामने है। तो कुछ बंदे बच गए, एक दो तो, और कुछ बंदों की फ़्लाइट मिस हो गई थी, तो वो बच गए हैं, देखा तो क्रैश हो गया। तो उनके लिए तो वो जहमत रहमत की सूरत में बनी, जो फ़्लाइट मिस कर दी जिन्होंने। तो देखिए जी, हैवी रेन्स प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द क्रॉप्स, फसल के लिए बहुत तेज़ बारिश जो है वो जहमत की सूरत में रहमत साबित हुई। अच्छा हो। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट एक ऐसे जैसे बिजली गिर जाना आसमानों से आपके ऊपर। बोल्ट बिजली को कहते हैं ना, कड़क, आसमानों से बिजली चमकनी है और आप पे गिर जाती है, यानी नागहानी आफत, आप शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं। नागहानी आफत, कोई ऐसी आफत टूट पड़ती है अचानक आप पर जिसका आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि बिजली का कोई पता नहीं किस वक्त किस पे गिर जाए बादल के मौसम में। द न्यूज़ ऑफ इज न्यूज़, ये न्यू नहीं है बेटा, इसको करेक्ट करना है, ये करेक्शन कर लें। द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी उसके बाद की मौत की जो खबर है उसके लिए नागानी आफत बनी, एक बिजली से जैसे उसके ऊपर गिर गई, ऐसे ही होता है। अब ब्लाइंड एले जिससे आपके लिए टू बी यूज़फुल, ऐसी कोशिश जो बाद में नाकाम जाती है। मसलन ऐसे बच्चे जो FSC मेडिकल में आ जाते हैं, मार्क्स कम होते हैं और डॉक्टर बनने का शौक़ चढ़ जाता है, आगे आते हैं तो मार्क्स पूरे नहीं आते, मेरिट नहीं बनता और सामने दीवार, और उस सूरत में कह सकते हैं ब्लाइंड एले, यू आर इन ब्लाइंड एले। ऑल द क्लूज लेट द पुलिस हिम इनटू ब्लाइंड एले, तमाम जो क्लू इशारे थे पुलिस को एक बंद गली में ले गए, यानी आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना है। इस तरह वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, तो इसलिए प्लान किया करें अपने साथ। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब मछली पानी से बाहर होगी तो क्या होगा, कैसे वो तड़फेगी, बेचैन होगी, तो बेचैनी के लिए कि फील अनकम्फर्टेबल। द विलेजर वॉज अ फिश और वाटर इन द सिटी, अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत बदल चुका है ज़माना, लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा होता था, गांव वाला अगर शहर आ जाता था तो बाहर अनकंफर्टेबल फील करता था, हर काम में, खाने पीने में, उठने बैठने में, वॉशरूम यूज़ करने में, हर चीज़ में वो अजीब सा फील करता है। नेक्स्ट, अ फ्रेंच लीव, ऐसी छुट्टी जो आप बिना बताए करते हैं, आप छुट्टी करके घर बैठ जाते हैं, बताते भी नहीं हैं, तो ऐसी छुट्टी को अनटोल्ड एब्सेंस। ही इज़ ऑन फ्रेंच लीव टुडे, यानी आप छुट्टी कर लेते हैं, बताते नहीं है, लीव एप्लीकेशन वगैरह नहीं भेजते। अ गाला डे, अ डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का दिन, सक्सेस मेक्स एवरी डे अ गाला डे,
कामयाबी हर दिन को खुशी का दिन बना देती है, इसलिए कामयाबी की तरफ आगे कोशिश करने से कामयाबी मिल जाती है। नंबर 20 एंड लास्ट वन फॉर टुडे, रेड लेटर डे, हैप्पी ओकेजन, एक खुशी का अच्छा मौका। मसलन एवरी ईयर ईद इज़ अ रेड लेटर डे फॉर मी। हर साल ईद खुशी का दिन होता है मेरे लिए, एक अच्छा मौका होता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने एंजॉय किया और बड़ा समझा भी, और इसका फीडबैक भी देते रहे अपने टीचर्स को, इस हवाले से क्यूरीज को भी सॉल्व करवाएं जो भी इश्यूज हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी डिस्कस द नेक्स्ट 3 रूल्स ऑफ नाउन एंड करेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।